اور اب ایک اہم سوال، کیا امریکہ کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتیں چھپا رہا ہے؟ امریکی کرونا ٹاسک فورس کے سربراہ ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے چشم کشا انکشافات کر دیے۔ کہتے ہیں سرکاری سطح پر جتنی ہلاکتیں رپورٹ ہو رہی ہیں، جانی نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ڈاکٹر فاؤچی نے لاک ڈاؤن میں نرمی امریکہ کے لیے تباہ کن قرار دے دی۔ کیا امریکہ کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی اصل تعداد چھپا رہا ہے؟ امریکہ میں کرونا وائرس ٹاسک فورس کے چیئرمین ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے امریکیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے امریکی سینٹ کمیٹی کو بتایا، سرکاری سطح پر جتنی ہلاکتیں رپورٹ ہو رہی ہیں، جانی نقصان اس سے کئی زیادہ ہے۔ ڈاکٹر فاؤچی نے لاک ڈاؤن میں نرمی کی مخالفت کرتے ہوئے موقف اختیار کیا، ایسا کوئی بھی اقدام امریکہ اور امریکیوں کے لیے تباہ کن ہوگا۔ وائرس مزید پھیل جائے گا جسے کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر فاؤچی نے کہا، اسکولوں کو اس نظریے سے کھولنا کہ بچے کورونا سے محفوظ ہیں، انتہائی احمقانہ سوچ ہے۔ امریکہ کی طرح روس میں بھی کرونا وائرس تباہی پھیلا رہا ہے۔ مسلسل 11ویں روز 10,000 سے زائد یومیہ کیسز نے حکام کی نیندیں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ آج مزید 96 افراد ہلاک ہوئے، جس سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 2,212، جبکہ متاثرین 2,42,000 سے بڑھ چکے ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی خصوصی پرواز پاکستان میں پھنسے 390 مسافروں کو لے کر بارسلونا پہنچی، جبکہ واپسی پر 104 مسافر پاکستان بھی روانہ ہوئے، جنہیں انتہائی مجبوری کے حالات میں پاکستان پہنچنا تھا۔ پرواز میں کورونا سے جاں بحق ہونے والے 3 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ اسی حوالے سے شاہد احمد شاہد کی رپورٹ دیکھیے۔ موذی وبا کورونا کے باعث دنیا کے دیگر کئی ممالک کی طرح اسپین اور پاکستان میں سنگین صورتحال ہے، جس کے پیش نظر انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن بھی معطل ہے، مگر پاکستان اور یورپ میں پھنسے مسافروں کو اپنے اپنے گھروں تک پہنچانے کے لیے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی خصوصی پرواز آج 390 مسافروں کو لے کر بارسلونا پہنچی، جبکہ واپسی کی فیری فلائٹ کونسل خانے کی کاوشوں اور حکومت پاکستان کے تعاون سے 104 مسافروں کو لے کر پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ یہ پاکستان جانے والے ایسے لوگ تھے جنہیں انتہائی مجبوری کے باعث اپنے وطن پہنچنا تھا۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ خصوصی پرواز 3 پاکستانیوں کی میتوں کو بھی پاکستان لے کر جا رہی ہے، جو کورونا کے باعث اسپین میں جاں بحق ہو گئے تھے اور ان کی ڈیڈ باڈیز اسپین کے سردخانوں میں پڑی تھیں، جنہیں خاص طور پر سینیٹائز اور سیل کر کے پاکستان روانہ کیا گیا ہے۔ پی آئی کی اسپیشل فلائٹ 104 اسٹینڈرڈ پاکستانیز کو لے کے کچھ دیر میں روانہ ہونے لگی ہے بارسلونا ایئرپورٹ سے۔ یہ فیری فلائٹ ہونی تھی۔ میں منسٹری آف فارن افیئرز اور پی ایم سیکریٹریٹ کا، اسپیشلی جو کرائسس مینجمنٹ سیل ہے منسٹری آف فارن افیئرز کا، جس کو اسپیشل سیکریٹری معظم لیڈ کرتے ہیں، جس میں سلمان اطہر اور سمر ہیں، انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ، میری اور امبیسڈر کی ریکویسٹ پہ، اس فیری فلائٹ کو ایک پیسنجر فلائٹ میں کنورٹ کیا۔ ہمارے 3 شہید جو سسپیکٹڈ کرونا یا کرونا کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں، ان کی باڈیز جا رہی ہیں۔ میرا خیال یہ پہلی ایسی باڈیز ہیں جو سینیٹائز اور سیل ہو کے جا رہی ہیں۔ میرا بھائی بیمار ہے اور اس کو ٹیومر کینسر ہے، اس کا پاکستان پہنچنا بہت ضروری تھا، اور یہ جو فلائٹ آج جا رہی ہے اور میرا بھائی اس پہ آن بورڈ ہے، یعنی میرے لیے زندگی میں اس سے بڑا کوئی ایسا یہ ہو نہیں سکتا کہ آج میرا بھائی پاکستان جا رہا ہے اور اپنے بیوی اور بچوں میں انشاءاللہ جو زندگی کچھ دن ہیں اس کے، اور یہ سب بارسلونا کونسلیٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرا بردر وہ بھی کینسر کی لاسٹ سٹیج میں ہے، اور اس کو میرا بہت زیادہ بھیجنا ضروری تھا کہ ادروائز کوئی مس ہیپ ادھر اس کا ہو جاتا، تو میرے لیے یہ سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ کونسلیٹ کا عملہ ہے، جہاں جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے خاص کر کے ہمارے ڈیتھ باڈی کے لیے اور باقی ہمارے لوگوں کے لیے کوشش کی ہے، ہم سب ان کے انتہائی مشکور اور شکر گزار ہیں کہ ان لوگوں نے دن رات ایک کر کے پاکستان تک ہمارا میسج پہنچایا، اور آج پی آئی اے کی جو سہولت ہمیں میسر ہوئی ہے یہاں پہ۔ بہت شکریہ یہاں پی آئی اے کا اور یہاں کے ہماری پاکستانی ایمبیسی کا کہ انہوں نے یہ اسپیشل فلائٹ بھیجی ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی ادھر تھے جو ادھر آنا چاہتے تھے، جو نہیں آ سکتے تھے، اس لیے ہم ان کا شکر گزار ہیں، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔
कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी ने हुकूमत पाकिस्तान और स्पेन में मौजूद पाकिस्तानी कम्यूनिटी और समाजी शख्सियत हाजी नवीद वड़ाइच जो डेड बॉडीज पाकिस्तान भिजवाने के हवाले से अपनी खिदमत पेश करते हैं का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। वक्त के तेज रफ्तार घूमते पहिए के साथ ये मुश्किल दौर भी गुजर जाएगा, मगर इन कठिन हालात में समाजी शख्सियात और कौंसल खाने की जानिब से की जाने वाली काविशों को कम्यूनिटी हमेशा याद रखेगी। कैमरामैन बाबर चौधरी के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। और अब शामिल करें थाईलैंड से एक अच्छी खबर। चीन के बाद कोरोना वायरस पर काबू पाने वाला दूसरा मुल्क बन गया। 9 मार्च के बाद पहली बार कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस का खौफ आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। जहां यूरोप के मुत्तअद्दिद ममालिक ने लॉकडाउन में नरमी कर दी है, वहीं एशिया पैसिफिक के ममालिक में कोरोना के केसेस रिपोर्ट होना बंद हो गए हैं। चीन के बाद थाईलैंड में आज कोरोना का कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। थाईलैंड में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 3017 और 56 हलाकतें रिपोर्ट हुई। हुकूमत का कहना है कि कोरोना का केस रिपोर्ट न होने का मतलब ये नहीं कि हालात काबू में है, बल्कि कोरोना की दूसरी लहर इससे भी तबाहकुन हो सकती है। कोरोना वायरस की वजह से थाईलैंड की आबादी मुआशी बहरान से गुजर रही है। इस सूरत हाल में बैंकॉक के शेफ्स ने जरूरतमंद खानदानों की मदद करने का बीड़ा उठा लिया है। 200 के करीब माहिर पकवान और दर्जनों ड्राइवर्स ने नहायत कम रकम के एवज इस मिशन को सरअंजाम देना शुरू कर दिया। माहिर शेफ का कहना था कि इन दिनों उन्हें कोई रोजगार मुयस्सर नहीं है, लेकिन वो इन लोगों को फरामोश नहीं कर सकते जो ज्यादा जरूरतमंद है। रोजाना 4000 के करीब खाने के बॉक्सेस तैयार किए जाते हैं। शेफ दिन के सिर्फ $12, जबकि खाना पहुंचाने वाले ड्राइवर्स $9 तक रकम कमाते हैं। चाइना के बाद थाईलैंड वो पहला मुल्क था जिसमें कोरोना वायरस ने अपने मजबूत पंजे गाड़े थे। ताहम हालात पर काबू पा लिया गया है। इस 2 माह के अरसे में कोरोना वायरस का कोई नया मरीज सामने नहीं आया। हुकूमत की जानिब से कारोबारी पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया गया है। 2 दिन बाद शॉपिंग मॉल्स भी खोल दिए जाएंगे। नाजरीन, तुर्की में मुकीम पाकिस्तानी मेहनतकश भी कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। लॉकडाउन और काम ना मिलने की वजह से पाकिस्तानियों के पास ना तो किराए के पैसे हैं और ना ही दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए कोई रकम है। इस्तांबुल से देखते हैं आतिफ भट्ट की रिपोर्ट में। तुर्की में मुकीम पाकिस्तानी ताजिर और मेहनतकश भी कोरोना वायरस की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। इस्तांबुल में मुकीम 35,000 पाकिस्तानी हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर हैं। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से न उनके पास काम है, न ही घर का किराया देने को पैसे हैं। कोरोना वायरस के आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे जो इल्लीगल लोग हैं, काम ना होने की वजह से जो बेचारे घरों में बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा तंग हैं। उनको हम काफ़ी देर तक तो हम खिलाते रहे अपनी तरफ से, लेकिन हालात ये आ गए हैं कि 2.5 माह से होटल की बिल्कुल सेल ख़त्म है। घरों के किराए, बिजली, गैस, पानी के बिल, होटल के बिल, सारा कुछ मिला के हम इसका टैक्स पे कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से 2.5 माह से इधर घर में बैठे हुए हैं, कोई काम वाम नहीं है। अल्लाह पाक से दुआ है कोरोना वायरस जो है ख़त्म हो जाए ताकि रोज़गार खुले और इधर से पैसा कमाएं और बच्चों को भेजें। इधर 2 माह से कोरोना की वजह से 2 माह से जो है ना इधर काम बंद है। तो हमारे जो कौंसलेट है ना, पाकिस्तानी कौंसलेट और तंजीमें जो है ना, उन्होंने इधर काफ़ी लोगों को राशन दिया है। पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना है कि मकामी फलाही तंजीमों और कौंसलेट ने राशन के लिए ताउन किया, लेकिन इतनी बड़ी तादाद को राशन मुहैया करना मुमकिन नहीं। बिजनेस कम्युनिटी का मजीद कहना था कि तुर्क हुकूमत ने किराए मुआफ किए हैं, न ही कोई इमदाद दी है। खुदा से दुआ है कि वो हमें इस मुश्किल से निकाले ताकि हालात ठीक हों और हम वापस अपनी जिंदगियों की तरफ लौटें। तुर्की के शहर इस्तांबुल में तुर्किश गवर्नमेंट की तरफ से महल्ला वार लोगों के कारोबार खोलने का अंदिया दिया गया है। इसी के साथ लोगों में खौफ की फिजा भी कायम है। उनका कहना था कि हम दुआगो हैं कि यहाँ के हालात अच्छे हों और हम मामूल ज़िंदगी में वापस आ सकें। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की। खबर ये भी है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के 1905 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मरीजों की तादाद 44,830 तक जा पहुंची है, जबकि कोरोना वायरस के 9 मरीज जाँ बहक हुए हैं, जिससे जाँ बहक अफराद की तादाद
273 हो गई है। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना के 1905 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। मुल्क में मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 44,830 तक जा पहुंची है और कुल मरीजों में 32% सऊदी जबकि बाकी गैर मुल्की हैं। 147 मरीजों की हालत नाजुक है और वो ICU में हैं। उन्होंने कहा कि 2365 मरीज शिफायाब हो गए। कुल तादाद बढ़कर 17,622 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 9 मरीज जाबहक हुए जिनकी कुल तादाद 273 हो चुकी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की देखभाल करने के लिए हुकूमत के साथ साथ पाकिस्तानी इदारे भी मैदान में आ गए। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई की जानिब से कोरोना वायरस की वजह से होने वाले लॉकडाउन में ज़रूरतमंदों की मदद का सिलसिला जारी है। रोज़ादारों के लिए अफ्तारी का खुसूसी इंतज़ाम भी किया गया। इसी पर देखते हैं सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई की जानिब से मुस्तहक अफराद की मदद का सिलसिला कामयाबी से जारी है। फलाही तंजीम UAE हुकूमत के साथ मिलकर कोरोना मुतासरीन की देखभाल कर रही है और ज़रूरतमंदों को घरों में खाना भी पहुँचा रही है। एसोसिएशन के डायरेक्टर कम्युनिटी वेलफेयर रिजवान फैंसी ने 92 न्यूज़ से बात करते हुए कहा, उन्होंने 4 अप्रैल से फलाही काम का आगाज़ किया था। अब तक 9 से 10 हज़ार खानदानों को उनकी दहलीज पर राशन पहुँचाया जा चुका है, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर कारोबारी ग्रुपों के ताउन से 2500 अफराद को अफ्तारी बॉक्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। 4 अप्रैल ऑनवर्ड्स हमने ये इरादा किया और इसका काम शुरू किया इस कैंपेन को, और 4 अप्रैल से 23 अप्रैल तक हमने रमज़ान से पहले तक तकरीबन 4,500 राशन डिस्ट्रीब्यूट किए और फिर रमज़ान से कंटिन्यू यही काम किया और आज तक 4,500 और कर चुके हैं। तो इन ऑल टुगेदर 9,000 फूड राशन हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। सेकंड, हम कर रहे हैं इस वक्त बच्चों की एजुकेशन के लिए कि बहुत तकरीबन तमाम स्कूल इस वक्त ऑनलाइन पे स्विच हो गए और बहुत रिक्वेस्ट आई थी अगेन पेरेंट्स की तरफ से कि दे आर नॉट इन अ पोजीशन कि वो अफोर्ड कर सके डिवाइसेस, तो उनके लिए काम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह कल तक हम यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स में जो हमें रिक्वेस्ट आई थी 75 हमने लैपटॉप्स जो हैं वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं डोर टू डोर। उनका मजीद कहना था कि दुबई में पाकिस्तानी कौंसलेट से राब्ते में हैं, वहाँ भी लोगों को राशन तकसीम किया जा रहा है। रिजवान फैंसी ने पाकिस्तानियों से दरख्वास्त की कि थोड़ा सब्र रखें, फ़्लाइट्स कम हैं जिस वजह से कौंसलेट को भी मसाइल का सामना है। राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही हैं कंटिन्यू और कौंसलेट के ऊपर एक और प्रेशर ये भी है कि वो डेली टिकट्स के लिए हज़ारों लोगों की तादाद पे लोग खड़े हुए हैं और अमजद साहब बहुत कोशिशों में लगे हुए अपनी टीम के साथ और बिल्कुल मेहनत हो रही है और यहाँ पे भी हमारे साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है रिपैट्रिएशन के लिए कि हमें भिजवाया जाए और क्योंकि फ़्लाइट्स की कमी है और जाने वाले बहुत हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। लेकिन मेरी तमाम पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट होगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, माशाल्लाह काम सभी कर रहे हैं। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के डायरेक्टर कम्युनिटी वेलफेयर रिजवान फैंसी का ये भी कहना था कि हुकूमत दुबई की रिक्वेस्ट पर पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई की एक इमारत जिसमें 500 कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की देखभाल कर रही है, इसके अलावा मुस्तहक तालिबे इल्मों में 75 लैपटॉप भी तकसीम किए गए हैं। मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सदर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग UAE शेर अली खरल ने पाकिस्तानी काउंसलेट दुबई में काउंसिल ऑफिसर मुसव्वर अब्बास से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा UAE में कोरोना वायरस की वजह से रह जाने वाले पाकिस्तानी ईद पर अपने प्यारों के पास जाना चाहते हैं, लेकिन फ़्लाइट्स कम होने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। इसी पर देखिए सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट। सदर आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग UAE राय शेर अली खरल ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान कौंसलेट दुबई का विजिट किया और इस मौके पर उनकी मुलाकात पाकिस्तान कौंसलेट दुबई के ऑफिसर सैयद मुसव्वर अब्बास से हुई। राय शेर अली ने मुसव्वर अब्बास को बताया कि लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं, जिस पर सैयद मुसव्वर अब्बास ने कहा 70,000 के करीब लोगों की दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं, हम अपनी बसात से बढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। इस मौके पर शेर अली खरल ने हुकूमत पाकिस्तान से दरखास्त की कि फ़्लाइट्स में इजाफा किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ़्लाइटों की जो तादाद है उसको बढ़ाए, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा क्वारंटीन के लिए बहुत स्पेस है हमारे पास, अगर हम उसको यूटिलाइज़ करें। यूनिवर्सिटियाँ हैं, हॉस्टल हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं। अगर आप जिस इलाके का बंदा है उसी इलाके में उसको आप क्वारंटाइन कर दें, स्कूल में किया जा सकता है तो आप उसको वहाँ पे कर दें। उन्होंने कहा लोगों को सब्र से काम लेना होगा और इस मुश्किल घड़ी में हम सबको मिलकर इन हालात का मुकाबला करना है। मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई। नाजरीन, साउथ अफ्रीका में जारी लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेकर एक और खुसूसी परवाज़ जोहान्सबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हो गई। तैयारा 62 मुसाफिरों को लेकर अफ्रीका के मुल्क मलावी की तरफ रवाना हुआ, जिसके बाद वहां से मजीद मुसाफिरों को सवार करके पाकिस्तान रवाना किया गया।
जनूबी अफ्रीका में फंसे पाकिस्तानियों को वापस भिजवा दिया गया। पाकिस्तानियों को रवाना करने के बाद जोहान्सबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर सुहेल खान और डिप्टी हाई कमिश्नर अदनान जावेद ने तफसीलात से आगाह किया। आज हमने दूसरी स्पेशल फ़्लाइट ऑपरेट की है साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान के लिए। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो मैं सारे अपने एम्बेसी के जो मेरे कोलीग्स हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उनकी मेहनत से और उनकी काविशों से ये सब कुछ हुआ है। आज हमने जिन लोगों को इस फ्लाइट पे भेजा है वो भी वही लोग थे जो यहाँ फंसे हुए थे। It gives me immense pleasure to share that after today's second flight, which carried 110 Pakistanis from 6 countries, now none of Pakistani citizen who was here on a visitor visa or who was here on a project visa has been left stranded here in South Africa, and they are happy that they have left for Pakistan and now they will be celebrating their Eid with their families. साउथ अफ्रीका, मोज़म्बिक, स्वाज़ीलैंड व दीगर ममालिक के विजिट पर आए पाकिस्तानी कोरोना वायरस के पेश नज़र इमरजेंसी लॉकडाउन की वजह से इन ममालिक में फंस गए थे। तियारे में सवार होने से कबल मुसाफिरों ने मुसर्रत का इजहार करते हुए पाकिस्तानी सफारत खाने का शुक्रिया अदा किया। अगर हमने रात को 12 बजे इनको कॉल की तो हाई कमिश्नर साहब और स्पेशली डिप्टी हाई कमिश्नर साहब मिस्टर अदनान साहब के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं और उनकी जो एफर्ट्स हैं इनको हम कभी भूल नहीं सकते। आई थिंक बहुत ही अच्छी काविश है, जॉइंट एफर्ट है बिटवीन पाकिस्तान हाई कमीशन और एक ट्रस्ट है यहाँ पे इस्लामिक उनकी फॉर द रिपेट्रिएशन ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी विच वॉज स्ट्रैंडेड हेयर। वीज़ाज एक्सपायर हो चुके थे, लोग फैमिलीज़ के साथ स्ट्रैंडेड थे, मैं काम के सिलसिले में आया हुआ था, अकेला रह रहा था। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल एफर्ट। पाकिस्तान हाई कमीशन मिस्टर अदनान साहब ने हमारी बहुत हेल्प आउट की है, बहुत स्ट्रगल थी उनकी और हमें यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा हाथ है। I was here since 15 February, then the lockdown started. So I contacted the High Commission and they sorted me out. They helped me a lot for the flight arrangement, for the border crossing. पाकिस्तानी सफारत खाने की कोशिश और जनूबी अफ्रीकी हुकूमत के खुसूसी ताउन से एक ही माह में दूसरे चार्टर तैयारे का एहतमाम करके हमवतनों की वापसी का इंतजाम किया गया। बरतानिया का वुडलैंड गार्डन कुदरत का हसीन शाहकार है। कोरोना वायरस की वजह से इस जन्नत नज़ीर बाग की सैर को शहरी तरसते रहे हैं, तहम अब इसे आइंदा हफ्ते लोगों के लिए खोला जा रहा है। कुदरती रंगों से मुज़य्यन बाग की सैर करते हैं शिफा नकवी की रिपोर्ट में। अहम खबरें आपने जानी, इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।